आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटॉन्स, सेकंड इंटीग्रेशंस, थर्ड डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द NMR signal and some examples. First one is classification of protons. To interpret or predict NMR spectra, one must first be able to classify protons, which is known as the carbon's protons environments. Easiest to classify are those that are unrelated or different. Replacement of each of those one at a time with some group, which is denoted by G, in separate models creates constitutional isomers. पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो सब्स्टिट्यूट था वो x या y में बताया था, इसके अंदर G दिया है. There are some examples: CH3, CH2, CH2, CH3. In here, one H is replaced by the G, and this in here one hydrogen is replaced by G. These protons have different chemical shift. This classification is usually the most obvious. First, classification of protons in homotopic hydrogen are those that upon replacement one at a time with some group like Z in separate models creates identical structures. For example, we are taking CS3, H, H and H. One, this hydrogen is replaced by G, and second one it is replaced by again G, and the third example it is replaced by the. Both three hydrogens are replaced by one by G, and this hydrogen is chemically same in environment, so it is equivalent protons. जैसा कि इसमें बता रखा है, वन G, सेकेंड वन दिस वन एंड द थर्ड वन इज दिस. तीनों हाइड्रोजन की नेचर केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इसलिए इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और ये सेम ही सिग्नल देंगे. These protons are known as homotropic protons. Homotropic protons have the same chemical shift. We sometimes call them identical. Methyl hydrogen will always be in this category because of free rotation around the bond to the methyl carbon. Molecular symmetry can also make protons homotropic. तो इस तरह के प्रोटॉन्स जो हैं जिनमें फ्री रोटेशन है, मेन एग्जांपल मिथाइल है. These protons are known as homotropic protons or identical protons. Next one is, if replacement of one hydrogen at a time in separate models creates the enantiomers, which are mirror image to each other. These protons are known as enantiotropic protons, and these protons having the same chemical shift. For example, this one C, H and H. One is replaced by the, and the second example this one, and both have the same chemical environment, so it is identical. It is known as anisotropic. One this one G and second one in this. Both protons are in enantiomeric forms, so it is known as anisotropic protons having the same chemical shift. तो इनका जो भी रहेगा environment same है, इसीलिए इनके जो signals रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, same. Third one, if replacement of hydrogen in separate models creates diastereomers, तो these hydrogens are known as diastereotropic. जैसा कि इस एग्जाम्पल में लिया, ये दो हाइड्रोजन फर्स्ट इसमें G से रिप्लेस किया और सेकंड में G को इससे रिप्लेस किया. इनका केमिकल एनवायरनमेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर देखेंगे. ये जो G है ये इस Br के साथ में सिस फॉर्म के अंदर है, और दूसरे वाले में ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इस Br के साथ है, इसलिए इनकी जो नेचर रहेगी इन दोनों से लेके वो दोनों डिफरेंट रहेगा. इसलिए डायस्टेरोपिक प्रोटॉन्स हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट्स यूजुअली इन ऑर्डर टू हैव डायस्टेरोपिक प्रोटॉन्स.
there has to be a stereocenter somewhere in a molecule. However, trans alkene stereoisomers may also have diastereotopic troponin. तो इस कंडीशन के अंदर जैसा कि पहले में देखा आपके, ये जो जी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है ये बी आर के साथ सिस पोजीशन पे। अब सेकंड वाले में ये जो जी लगाया, सब्स्टिट्यूट लगाया, वो जिस प्रोटॉन के आधार पर लगाया वो उस बी आर के साथ ट्रांस पोजीशन में। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर इस बी आर के साथ, इस सब्स्टिट्यूट के साथ इन दोनों प्रोटॉन्स की जो है नेचर अलग अलग है। इन केमिकल एनवायरनमेंट दोनों का, किसी के साथ सिस पोजीशन में, किसी के साथ ट्रांस कंडीशन में, इसलिए केमिकल एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण इनकी सिग्नल जो पीक्स आएंगी वो अलग अलग आएगी। सो इट इज़ नॉन एज डायस्टेरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स, इट इज़ नॉन एज डायस्टेरियोट्रॉपिक। तो तीन तरह के सिग्नल के बारे में पढ़ा, तीन तरह के प्रोटॉन, होमोटॉपिक, एनिसोटॉपिक एंड डायस्टेरियोट्रॉपिक। These are the NMR problems. How many protons environment are there? First example CH3 CH2Br, बहुत क्लियर कट है इसके अंदर। CH3 एक ही तरह के प्रोटॉन्स एक तरह का सिग्नल देंगे, सेकंड CH2 दूसरे तरह का। तो इन दो इन्वायरमेंट के प्रोटॉन्स हैं, दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे और दो सिग्नल्स अपने को प्राप्त होंगे। सेकंड एग्जांपल CH3O CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3। टोटल इन्वायरमेंट देखें तो ये पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इन दोनों का इन्वायरमेंट देखें फोर्थ एंड दिस फिफ्थ। तो टोटल प्रोटॉन्स जो नॉन इक्विवेलेंट हैं वो 5 तरह के हैं, तो 5 तरह के सिग्नल प्राप्त होंगे। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सिग्नल की संख्या देखें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर जितने भी प्रोटॉन्स आते हैं वो दूसरे प्रोटॉन्स के साथ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पे आते हैं। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ जो प्रोटॉन्स है एच, ये इन प्रोटॉन्स के साथ नॉन इक्विवेलेंट की कंडीशन में आ जाएगा। तो ये प्रोटॉन अपने आप में अलग हो गया, तो ये सिग्नल एक। मिरर में जाने के बाद में आमने सामने प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स में कंसिडर होंगे। ये दोनों प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं आपस में, ये दोनों हाइड्रोजन, ये भी अपने आप में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। और तीसरा जो होगा, ये होने के बाद चौथा आएगा ये वाले CH3 वाले। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो फर्स्ट हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन अगेन एंड 3 हाइड्रोजन। इन फर्स्ट वाले का ये जो है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ थे। 1 हाइड्रोजन गिव्स 1 सिग्नल, 2 हाइड्रोजन गिव्स 1 सिग्नल, अगेन 2 हाइड्रोजन विच इज इन रेड्स 1 सिग्नल, 3 हाइड्रोजन 4 नंबर पे हैं वो भी 1। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे 4। नेक्स्ट वन देखें, इसमें कितने तरह के होंगे, इसको ओपन करके देखें। CH3 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 एंड H। क्या इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है? नहीं, क्योंकि सामने की तरफ देखें, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और एक तरफ एक H लगा हुआ है। तो ये आपस में इसका इस CH3 के साथ सिस कंडीशन होगी, लेकिन इस CH3 की इसके साथ में ट्रांस कंडीशन होगा। तो इनका इन्वायरमेंट अलग अलग होने के कारण ये एक ही तरह के सिग्नल देंगे। ये CH3 दूसरे तरह का सिग्नल देगा, ये CH3 3 और ये 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 4 इन्वायरमेंट होने के कारण 4 तरह के सिग्नल शो करेंगे। इसके अंदर देखें, ये CH3 CH2 और ये CH3 CH2 के इस तरफ देखें या इसके इस तरफ देखें, दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो जाएंगे और एक तरह के सिग्नल प्रदर्शित करेंगे। तो CH3 एक सिग्नल देगा, CH2 दूसरा, यही दोनों सेम ये वाले देंगे और इनका इन्वायरमेंट भी आपस में सेम रहेगा। तो ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 3 तरह के शो करेंगे। Next one is very important, the integral. The integration is performed to determine the relative number of protons in a given environment. The number is set to 1, 2 or 3 for a given peak. Then the areas of the other signals are reported relative to that one. The integral should be round to the nearest whole number. After all,
there is either 1, 2 or 3 protons in a certain environment, never a decimal fraction. Our spectrometer prints the integral below the spectrum written sidewise in red line. Here are the some numerical problem. A compound of molecular formula which having C9H10O2 gives the following integrated 1H NMR spectrum. How many protons give rise to each signal? यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O2 है, जिसका इंटीग्रेटेड स्पेक्ट्रम जो है वो दिया गया है. इसमें प्रोटॉन्स की संख्या सिग्नल के आधार पर निकालनी है. तो इस सिग्नल में स्पेक्ट्रम के अंदर देखें, ये जो इंटीग्रेटेड वैल्यू जो आ रही हैं वो 54, सेकंड में आ रही हैं 23 और थर्ड में आती हैं आपके पास 33. तो ये सिग्नल ए के लिए प्रोटॉन्स के लिए, ये सिग्नल बी के लिए और ये सिग्नल सी के लिए आते हैं. तो स्टेप फर्स्ट के अंदर जो रहेगा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट्स पर प्रोटोन बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जितनी भी टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट्स हैं उनको जोड़ लेंगे. पहली फर्स्ट 54, ये रहा, सेकेंड 23 एंड द थर्ड वन इज़ 33. जितनी भी इंटीग्रेटेड वैल्यूज़ आती हैं यूनिट्स की उनको आपस में टोटल करेंगे. तो टोटल यूनिट्स इंटीग्रेशन की आती है 110 यूनिट्स आएंगी. इनको जितने भी प्रोटॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो इसके अंदर है फार्मूला जो दे रखा था उससे पता लग देगा C9H10. तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 10 हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट को 10 से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइडेड बाय 10, तो 11 यूनिट्स पर प्रोटॉन्स अपने पास में आ जाएंगे. नाउ सेकंड से स्टेप, डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिविंग राइज टू ईच सिग्नल. अब इससे सिग्नल से निकालेंगे. तो सिग्नल निकालने के लिए जितने भी इंटीग्रेटेड यूनिट थी, सिग्नल ए के लिए जितनी थी आपके 54, इट इज़ डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर प्रोटॉन. तो 54 इज़ डिवाइडेड बाय 11, सो वी ऑब्टेन 4.9. इसको डेसिमल में नहीं लेते, राउंड फिगर के अंदर लगते हैं. तो 4.9 मीन्स कितना हो गया? 5 हाइड्रोजन. सेकेंड सिग्नल बी के लिए लें तो इंटीग्रेटेड वैल्यू जो थी 23, इट इज़ डिवाइडेड बाय द 11, सो वी ऑब्टेन 2.1 यानी 2 हाइड्रोजन के लिए आएगा. और तीसरा सिग्नल सी के लिए 33 विच इज़ डिवाइडेड बाय अगेन 11, तो इट इज़ ऑब्टेन 3H. तो इसकी वैल्यू, इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाली, उनकी टोटल जितने भी यूनिट्स से उनको ऐड किया, जितने भी प्रोटॉन से उससे डिवाइड करते हैं. तो 11 यूनिट्स जो आई, जितनी भी यूनिट्स आई उसको जितने भी सिग्नल में इंटीग्रेटेड वैल्यू से उससे डिवाइड करेंगे तो प्रोटॉन्स की संख्या हमें ऑब्टेंट हो जाएगी. तो इसमें मिले 5 हाइड्रोजन जो एक तरह के सिग्नल देते हैं, दूसरा 2 हाइड्रोजन जो एक तरह के सिग्नल देते हैं, और तीसरा 3 हाइड्रोजन इससे एक तरह के सिग्नल. तो हमें इससे प्रोटॉन्स के बारे में पता लग जाता है इंटीग्रेटेड वैल्यू से कि कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं. 5 हाइड्रोजन मिले इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन मिले और 3 हाइड्रोजन. तो टोटल इनको देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए? 10 हाइड्रोजन. इस ग्राफ को देखते हुए निकाल सकते हैं. सेकेंड वन, यूजिंग अगेन द स्पेक्ट्रा 1H NMR spectrum, determine the structure of unknown compound X that has the molecular formula C4H8O2. That contains C double bond of absorption in the IR spectrum. फिर उसी तरह करेंगे. इंटीग्रेटेड वैल्यू देखें 14, सेकंड में 11 तो थर्ड में 15. इनका टोटल करें 14 + 11 + 15, तो टोटल यूनिट्स आई 40. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या 8 है, इससे डिवाइड कर देंगे 40 डिवाइडेड बाय, तो टोटल 5 यूनिट्स पर प्रोटॉन्स आते हैं. अब 15 को डिवाइड किया 5 से तो 3 प्रोटॉन्स आए. 11 को 5 से डिवाइड किया 2.2, राउंड फिगर में लिया 2 प्रोटॉन्स आए. और तो थर्ड वन था 14 डिवाइडेड बाय 5, 2.8, 3 प्रोटॉन्स. यानी प्रोटॉन्स की संख्या कितनी आ गई? 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन. इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या इंटीग्रेटेड वैल्यू से निकाल सकते हैं. 3 हाइड्रोजन मीन्स CS3, 2 हाइड्रोजन मीन्स CS2 एंड अगेन 3 हाइड्रोजन मीन्स CS3. तो इस तरह से हमें ग्रुप्स के बारे में पता लगता है और उसमें फंक्शनल ग्रुप्स ये बता रखता है, उससे स्ट्रक्चर डिटरमाइन ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं.
अगेन एग्जाम्पल ऑफ इथाइल एसीटेट CH3 COO CH2 CH3। इसके अंदर इंटीग्रेटेड वैल्यू देखें, नीचे लिखी हुई है रेड शो में 1.95, राउंड फिगर मिले तो 2 हाइड्रोजन। सेकंड में 3.00 यानी 3 हाइड्रोजन, और थर्ड मिले 2.94, राउंड फिगर मिले 3 हाइड्रोजन। तो इन 3 हाइड्रोजन के लिए स्ट्रक्चर देखें तो ये CH3 के लिए, ये जो था अगेन CH3, और ये 2 हाइड्रोजन जो है वो OCH2 के लिए। तो इन तीनों से हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वैल्यू। इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरह से 1.95, 3 एंड 2.9। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इथाइल प्रोपेनेट। फिर इंटीग्रेटेड वैल्यू देखें जो बॉटम में लिखी हुई है 1.99 मीन्स CH2, 1.99 अगेन मीन्स CH2, 3.0 मीन्स CH3, अगेन 3 इट मीन्स CH3। यानी इससे पता लग गया हमारे पास में 2 CH3 हैं, 2 CH2, जैसा कि ग्राफ में पता है CH3 CH3 CH2 एंड OCH2। OCH2 क्यों है, इस तरफ क्यों है, क्योंकि डी शेल्डेड है, डाउन फील्ड के अंदर है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये इससे स्ट्रक्चर डिटरमाइन की जा सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2-ब्यूटेनॉन। वैल्यू देखें 2 यानी CH2, 2.9 यानी CH3, नेक्स्ट वाले में देखें 3 यानी CH3। तो इसके अंदर देखें CH2 है, ये यहाँ से पता, CH3 ये जा, और तीसरे वाले में देखें तो CH3। तो इस स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल है तो CH3 CO CH2 एंड CH3, यानी 2-ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर इस स्पेक्ट्रम से निकाली जा सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1-प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटेड वैल्यू देखें, रेड में शो कर रखा है CH2 होगा, ये 0.99 यानी कोई भी H है, 2 की बात करें यानी CH2 एंड 3 की बात करें यानी CH3। फंक्शनल ग्रुप हम IR से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर CH3 1, CH2 की बात करें 2, 1 हाइड्रोजन तो OH, CH2 की बात करें तो OCH2। इन सभी की हेल्प से हम with the help of IR and the number of protons we draw the structure of the compound. Next example 1-butanol 3.2 यानी CH2, 1 प्रोटॉन की बात करें, 3.9 की बात करें CH2, इसकी बात करेंगे CH2, यहाँ बात करेंगे एंड CH3। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें CH3 CH2 CH2 CH2OH। वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1-ब्यूटेनॉल, जिसका डिटेल स्पेक्ट्रम जो है अपने सामने 1 2 3 4 एंड 5th वन। थैंक यू वेरी मच।